السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے 21 تا 23 جنوری ڈیووس کا کریں گے دورہ۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری اور دیگر امور پر ہوگی اہم شخصیات سے بات چیت۔ کاماریڈی ڈکلیریشن پر مکمل عمل آوری اور پسماندہ طبقات کو مجالس سے مقامی اداروں میں 42% تحفظات دیے جائیں۔ تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام 3 جنوری کو اندرا پارک پر احتجاج کا کویتا نے کیا اعلان۔ BRS پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کے نام پر کر رہی ہے ڈرامہ۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ہنمنت راؤ نے کی کویتا کے احتجاج کے اعلان پر تنقیدیں۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے مودی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر کی سخت تنقید، کہا جھوٹے وعدوں سے ملک ترقی نہیں کر سکتا، عام آدمی بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے پریشان۔ اور غزہ میں ظالم اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف تازہ حملے، کم سے کم 18 فلسطینی ہوئے شہید، متعدد دیگر زخمی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے تلنگانہ اور حیدرآباد سے جڑی خبروں سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ورلڈ اکنامک فورم کے 55ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈاووس جائیں گے، جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف کارپوریٹ کمپنیوں کے ساتھ اس دورے کے دوران معاہدوں کا امکان ہے۔ 21 سے 23 جنوری کے دوران ریونت ریڈی ڈاووس میں اجلاس میں موجود رہیں گے اور مختلف سرکردہ تجارتی شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ یاد رہے کہ سال 2024 کے دورے میں ریونت ریڈی نے لگ بھگ 40,232 کروڑ روپے کے معاہدے کیے تھے، جس سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا۔ کاماریڈی ڈکلیریشن پر مکمل عمل آوری اور پسماندہ طبقات کو مجالس سے مقامی اداروں میں 42% تحفظات کی فراہمی کے مطالبے پر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام 3 جنوری کو اندرا پارک پر ایک اجلاس ہوگا۔ اس سلسلے میں صدر تلنگانہ جاگرتی اور MLC BRS کلوا کنٹلا کویتا نے BC محاسبہ کے پوسٹر کی رسم اجرا کی۔ کویتا نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت پسماندہ طبقات کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ مجالس سے مقامی اداروں کے انتخابات میں BC طبقات کے لیے تحفظات میں اضافے کے معاملے پر ریونت ریڈی حکومت وقت ضائع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت برسر اقتدار آ کر زائد از 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن چیف منسٹر نے BC طبقات سے کیے گئے وعدوں میں سے پورا ایک بھی وعدہ نہیں کیا۔ کویتا نے کہا کہ کاماریڈی ڈکلیریشن پر مکمل عمل آوری اور تحفظات میں اضافے کے مطالبے پر یہ محاسبہ منعقد کی جا رہی ہے۔ اس دوران اطلاع ہے کہ ابھی تک پولیس نے اس جلسے کی احتجاج کی اجازت نہیں دی، جس کو لے کر کویتا نے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اور اس دوران کانگریس کے سینئر لیڈر ہنمنت راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت نے ذات پات کی مردم شماری کروائی اور حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، جبکہ BRS پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کے نام پر ڈرامہ کر رہی ہے۔ ہنمنت راؤ نے یہ سوال کیا کہ 10 سالہ دور حکومت میں BRS اور KCR نے آخر کیا کارنامہ انجام دیا۔ کبھی OBC کے بارے میں سوچے نہیں، OBC کا کچھ کرتو بولے اور سمگر کل سروے بھی کرے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا، اور اوپر سے بول رہے 34% ریزرویشن دیں گے، بولے 22% ہی دیے۔ بھائی آج اور کاماریڈی کا ڈکلیریشن 42% کرنا ٹھیک ہے۔ آپ جب سرکار میں ہم دیکھو راہل گاندھی بولنے کے بعد جتنا حصے داری اتنی باغیداری بولے، کیسٹ وائز سینسس کروں اس کا آج پورا ہندوستان میں کوئی نہیں کرا۔ یہاں پر ریونت ریڈی کے نیتوتو میں، چیف منسٹر نیتوتو، اسمبلی میں بل پاس ہوا، کیبنٹ ڈیسیشن ہوا اور کیسٹ وائز سینسس 90% سے اوپر کیسٹ وائز سینسس بھی ہوا۔ اب ایک نیا ڈرامہ ہے۔ اب کل تک آپ کو پتہ نہیں تھا، آج ہمارے اوپر ڈکلیریشن کرنا بول کے اب اندرا پارک کرنے دھرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ 10 سال میں کبھی یاد کرے کیا ہم کو؟ میں OBC MPs کا کنوینر سے دلی میں جو سپریم کورٹ IIT IIM میں ریزرویشن دینا بول کے سپریم کورٹ اپیل کرے تو اپیل کو ریجیکٹ کرے، مگر سونیا گاندھی جو UPA چیئرپرسن منموہن سنگھ کو بول کے پارلیمنٹ میں بل لگائے تو IIT IIM میں ریزرویشن آ گیا۔ آج انجینئرز وغیرہ ہزاروں بچے
महिला हो, नौजवान हो, सबको अपॉइंटमेंट मिला और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर भी बन रहे। ये क्या है ड्रामा? चुपके तो भी अब देखो हम लड़ रहे बोलने को बता दिया। आप जब सरकार में तो कभी याद ही नहीं आए ओबीसी की। आज बराबर कामारेड्डी का डिक्लेरेशन, ये जो जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हम करने की कोशिश कर रहे, वो क्रेडिट लेने के वास्ते ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा मुझे भी समझ में आ रहा। आप लोग क्या करें, 34% बोल के 22% ही दिए। अब आप क्यों नहीं दिए भाई? जब आप 34 बोल के क्यों नहीं दिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। लोगों को गुमराह करने के वास्ते ये जो धरना हो रहा। तबलीगी जमात के इज्तिमा शंकरपली के सिलसिले में एमएलसी आमिर अली खान ने इज्तिमा का दौरा किया। 3, 4 और 5 जनवरी को यह इज्तिमा होगा जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को है। इस मौके पर एमएलसी आमिर अली खान ने इंतजामात का जायज़ा लिया, तैयारों का शख्सी तौर पर मुशाहिदा किया। RDO चंद्राकला और तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान बादशाह मोहिद्दीन और दीगर से बातचीत की। इस मौके पर मीडिया के लिए तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान ने बयान भी दिया। यहाँ पे जनवरी 3, 4, 5 इज्तिमा हो रहा है। ये जो ज़मीन पे हम ठहरे हुए हैं, TS जिनको की ज़मीन है, और यहाँ से परमिशन लेके हम ये काम कर रहे हैं और 45 दिन से काम कर रहा है। यहाँ पे 25 तामखाने हैं, 12 टॉयलेट्स है और 6 वज़ू खाने हैं। एक वज़ू खाने में कम से कम 3000 आदमी वज़ू करते हैं बैवक्त, और हर तामखाने में एक टाइम पे 3500 आदमी खाना खाते हैं। और ये मेहनत माशाल्लाह से 45 दिन से हो रही है। और इस इज्तिमा का मकसद ये है कि हमारे मुसलमान भाई हर बुरा काम छोड़कर अल्लाह की राह पे निकल कर सही अच्छे काम करें। ये हमारी मेहनत चल रही है। माशाल्लाह से 45 दिन से काम चल रहा है। हर आदमी अपने खुद का जान माल और वक्त लगा के काम कर रहा है, और जितने भी बग़ैर कोई लेबर लगा के माशाल्लाह से अपनी मशीनरी खुद अपना जान अपना माल वक्त लगा के इस काम को मेहनत को अंजाम दे रहा है। और यहाँ से रंगारेड्डी और विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और सिकंदराबाद हैदराबाद से यहाँ पे लोग आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। संक्रांति के मौके पर रेलवे पटरियों के करीब पतंगबाजी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO ए श्रीधर ने कहा कि आने वाले संक्रांति त्यौहार के दौरान रेलवे स्टेशनों के करीब पतंगबाजी से एहतियात की जाए, सबके लिए खतरे का बास रहता है। उन्होंने कहा कि बाज़ वक़्त धागा गीला होता है और इसे पकड़ने वाले लोग बिजली से झुलसने का भी अंदेशा रहता है। उन्होंने कहा कि हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए, बच्चों को भी एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल धागों के उलझने के लगभग 750 केसेस सामने आए। We have given an advisory regarding flying of kites near railway stations, railway yards and railway tracks. Particularly this is more so important because in view of the coming Sankranti festival, there is a huge kite flying taking place all over the city and even in rural places in Telangana and Andhra Pradesh. Particularly this is very dangerous in view of train running, hampering of the train running. Why? Because when a kite flies or it entangles with the railway overhead equipment, particularly which is charged with 25 kV, so that becomes a very dangerous thing because sometimes it may happen that this thread may get wet and people catching hold of the thread, they may get shock and even get electrocuted also. So there is always this chance of electrocution or getting a shock, suffering a shock. Apart from that, for railway working also, when a train is moving, when a kite or its thread, if it gets entangled with the pantograph of a railway engine, so railway engine we have a overhead equipment. When it gets entangled, train running will get disturbed. So it will hamper the traffic also. So and in certain situations, when people they wanted to get their kite back or the threads they wanted to get it back, when they approach the track trying to get hold of this kite and thread, they may suffer shock also. And sometimes it may lead to train running getting hampered.
Particularly, this is a very technical thing when train gets delayed or obstructed due to this activity. So only expert technicians can only handle such kind of situations. Normal public, they should not come near to the track or to this overhead equipment. So in view of this, we wanted to alert all the public and request all the general public that this is a very serious issue. It should not be taken very lightly, and this issue to be dealt very cautiously, and particularly children who are not aware of this serious situation, they should be enlightened and educated about this. Have come to your notice? Yes, last year in all over Indian Railways, few incidents have come to our notice. In view of that, we wanted to alert general public in advance, and moreover, we have a statistics with our own railway. In last year, during this Sankranti festival time, in Secunderabad division, around 750 cases of kites or thread being entangled in railway assets. It has come to our notice, and our expert technicians, they could handle this situation. So in view of this, we wanted to alert all. चाइना मांझा के इस्तेमाल को रोकने पुलिस सरगर्म हो गई है। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक ने आज मंगलहाट का दौरा किया। बाद में मीडिया से उन्होंने बातचीत की और कहा कि संक्रांति त्यौहार को मनाते वक्त चाइना मांझा का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए, ये मुकम्मल तौर पर ममनू है। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी जान को खतरा लाहक हो सकता है। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, ये संक्रांत का सीज़न है, काइट्स फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल में काइट उड़ाते वक्त अपना चाइनीज़ मांझा बोल के एक किस्म का मांझा है, वो उससे आप कहीं अगर किसी को लग गया तो कट जाता। और लास्ट ईयर भी एक आदमी मर गया इसमें, और ये साल भी ऐसे इंजर्ड हुआ। तो इस सिलसिले में हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे एक बार चेक करो मंगलहाट में बोले, तो मैं आज मंगलहाट आके चेक किया। चेक करने पर एक ये 6 बॉबिन्स मिले। इसमें टोटल अपने 5 जनों को हम अरेस्ट करे, और इसका सोर्स एक जना है, उसको भी हम अरेस्ट करते हैं। लोग कहाँ से मांझा लाए उसको भी अरेस्ट करते हैं। और दूसरा एक बात क्या है, मैं आवाम से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि फेस्टिवल आप मनाइए, खुशी से मनाइए और एहतियात के साथ मनाइए। बच्चे ऊपर जाके पतंग उड़ाते समय टाइम पे पीछे फिसल के गिर जा रहे टेरिस पे से, ऐसा ये बच्चों का ख्याल रखिए। और बच्चों को ऐसा ऊपर टेरिस पे जाके उड़ाने मत दीजिए। अगर उड़ाने का रहे तो भी आप बड़े लोग साथ रहना और उसको बाउंड्री वार रहे उस जगह उड़ाने के बोलिए। और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि ये अपना चाइनीज़ मांझा ना ख़रीदें, इससे लोगों की जान चले जा रही। अगर ये कोई उड़ाते सो अगर अपन दिखे तो उसको भी हम केस लगाएंगे। चाइनीज़ मांझा ये कि लोग चोरी क्या कर रहे हैं, दुकानों पे नहीं रख रहे, घरों पे रख रहे हैं। कोई आके पूछने के बाद उसको पहले पैसे ये कर ले रहे, उसके बाद जाके घरों पे ले आके दे रहे। तो वही आप क्या बोलते हैं उसको, ऑफेंस ऑफेंस को क्या बोलते हैं उसको, ऑफेंस करने का एक बार वो क्या बोलते हैं, पैसे कमाने का मज़ा लग गया उन लोगों को, ये ज़्यादा में बेचते हैं। तो इस लिहाज से वो पैसे कमाने की नीयत से ज़्यादा पैसे कमाएंगे बोल के उसको आदी हो गए वो लोग। हिंदुस्तानी फ़ौज तारीखी किला गोलकोंडा हैदराबाद में 3 ta 5 जनवरी अपनी फ़ौज को जानिए मेला 2025 का इनेकाद कर रही है। तेलंगाना एंड आंध्रा सब एरिया हेडक्वार्टर्स के ज़ेर एहतमाम ये मेला होगा, जिससे आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का भी ताउन हासिल है। आर्मी डे परेड 2025 के इब्तदाई हिस्से के तौर पर यह मेला होगा। इस मेले से फ़ौज की सलाहियतों और टेक्नोलॉजी और क़ुव्वत को देखने का एक मिसाली मौका फराहम होगा। इस मेले का मकसद फ़ौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों को इसमें शमूलियत की तरगीब और तहरीक भी देना है। मेला देखने आने वाले अफराद को फ़ौजी आलात के साथ तस्वीर कशी की भी इजाज़त रहेगी। फ़ौज में भर्ती के बूथ रहेंगे, जहाँ पर मुसल्लह अफ़वाज में कैरियर के मौक़े से तफसीली मालूमात दस्तियाब रहेंगी। हर स्टॉल पर फ़ौजी अमला मौजूद रहेगा जो सवाल का जवाब देगा।
हेडमास्टर सी श्रीनिवास जो सिलसिला गवर्नमेंट हाई स्कूल की हमजहत तरक्की के लिए कोशा है, उन्होंने एक नायाब कारनामा अंजाम दिया। पूरे साल 2024 के दौरान उन्होंने एक भी रुख्सत नहीं ली। हालांकि सरकारी मुलाजिमीन को साल में 15 आम छुट्टियां तनख्वाह कटौती के बगैर दी जाती हैं, लेकिन श्रीनिवास ने इन छुट्टियों को भी इस्तेमाल नहीं किया। यह इनके तदरीसी जज्बे और काम के तई अज़म की उम्दा मिसाल है। पेशे तदरीस वाबस्ता श्रीनिवास ने PhD तक तालीम हासिल की। जब श्रीनिवास ने स्कूल की जिम्मेदारी संभाली तो इस वक्त स्कूल में लगभग 40 बच्चे ज़ेर तालीम थे। हमारे नुमाइंदे सिलसिला आसिफ अली सादत के मुताबिक हेडमास्टर श्रीनिवास ने स्कूल में दाखिले बढ़ाने के लिए तालीम के मेयार को बेहतर बनाया, कंप्यूटर लैब कायम किया, गर्मियों की छुट्टियों में अंग्रेज़ी ज़बान में महारत बढ़ाने के लिए ख़ास प्रोग्राम मुनक़िद किए, जिसके बाद आज स्कूल में लगभग 250 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाक़े मिर्चल के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पेश आए शर्मनाक वाक़े के बाद से तलबा बरहम है। हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब होने का इंकशाफ सामने आया, जिस पर तलबा ने खूब एहतजाज किया। कुछ तालिबात ने शुबह ज़ाहिर किया कि हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसके बाद तलबा कॉलेज के पास जमा होकर एहतजाज करने लगे। तलबा तंजीमों का कहना है कि हरकत हॉस्टल के मुबैना तौर पर बावर्ची ने की है, जिस पर शक किया गया। तलबा ने मुतालबा किया कि वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की और कहा कि हुकूमत के पास बहरान का कोई हल नहीं है जो उसने आवाम की ज़िंदगी में पैदा किए। खड़गे ने अपनी पोस्ट में 7 अहम बातों का जिक्र किया जो आवाम की ज़िंदगी के लिए इंतहाई मुश्किल बन गए। इन नुकात को देखकर वाज़ेह होता है कि मोदी हुकूमत ने आवाम को माशी तौर पर तबाही की जानिब धकेला। खड़गे ने कहा कि गोल्ड लोन, सोना के एवज कर्ज में तेज़ तरीन इजाफा हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ, जिससे अवाम को मज़ीद माली मुश्किलात का सामना है। घरेलू ख़रीदारी की सतह गुज़िश्ता 8 सहमाहियों से सुस्त हो गए और ये भी अभी तक कोविड से पहले की सतह पर वापस नहीं आ सकी। इसका मतलब है कि लोग क़ुव्वत ख़रीदारी में कमी का सामना कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि गाड़ियों की फ़रोख्त में गुज़िश्ता 4 सालों में सबसे बड़ी कमी आई, जिससे मईशत की कमज़ोरी का पता चलता है, जबकि मज़दूरों की तनख्वाहों में सिर्फ 0.8% की सालाना शरह से इजाफा हुआ। खड़गे ने कहा कि खाने पीने की अशिया की महंगाई, ख़ासतौर पर टैक्सों ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। रुपये की कदर निचली सतह तक पहुँच गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के झूठे वादों से आवाम की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए मरकज़ी हुकूमत के पास 1 साल का वक्त काफ़ी है। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने दफ़ा 370 पर अपना फ़ैसला सुनाया और 1 साल बीत गया, जो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए काफ़ी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहुत जल्द मिल जाएगा। गवर्नेंस के बारे में एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम समझते हैं कि लोगों के जज्बात और उमंगों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम अच्छी हुकूमत को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश में है। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं
जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकजी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल। केरल की जिम्मेदारी अदा करने के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हलफ ले लिया। राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्र ने आरिफ मोहम्मद खान को हलफ दिलाया। नए गवर्नर के हलफ उठाने की तकरीब में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और दीगर कई सियासी कायदीन मौजूद थे। आरिफ खान इससे पहले केरला के गवर्नर थे और अब वो बिहार के नए गवर्नर बनाए गए हैं। और बात करेंगे फ़लस्तीन की। गज़ा में वज़ारत सेहत ने कहा कि क़ाबिल इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी नस्ल कुशी में शुहदा की तादाद बढ़कर 46,000 हो गई है, जबकि 1,10,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने आज फिर ताज़ा हमले किए जिसमें कम से कम 18 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं, जबकि मुतादिद दीगर ज़ख्मी भी हुए। इस दौरान हमास ने फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को खिलाज पेश करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज ने सोचे समझे मनसूबे के तहत जर्नलिस्टों का कत्लेआम भी जारी रखा है, जिसमें अब तक गाज़ा में 201 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हुए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी और गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। अमेरिका की रियासत लुइसियाना के शहर न्यू ऑरलियंस में नए साल के मौके पर एक गाड़ी से हजूम पर होने वाले हमले में अब तक 15 अफराद की हिलाकत और कम से कम 35 के ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है। इस दौरान पुलिस ने हमलावर की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से की। दावा किया है कि हमलावर ने जानबूझकर ऐसा किया और वो तबाही मचाने पर तुला हुआ था। न्यू ऑरलियंस के पुलिस सरबराह के मुताबिक एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाड़ी तले रौंदने की कोशिश में था। हुकाम के मुताबिक शमसुद्दीन असलहा से लेस था और उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की, जिसमें 2 अफसरान जख्मी हुए। बाद में पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। अमेरिकी इदारे FBI के मुताबिक हमलावर 42 साला शमसुद्दीन है, जो टेक्सास का रिहायशी अमेरिकी शहरी था और पहले अमेरिकी फ़ौज के लिए भी काम कर चुका है। शमसुद्दीन की गाड़ी से हुकाम को नामनेहाद दाइश का झंडा भी मिला। FBI ने कहा कि इस बात की जांच जारी है कि आया शमसुद्दीन का किसी दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक़ था या नहीं। इस दौरान इत्तला है कि एक हमलावर ने न्यूयॉर्क के क्वींस के नाइट क्लब में अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। जिस नाइट क्लब में वाक़या पेश है उसका नाम अमजोरा नाइट क्लब है और अभी तक मुल्ज़िमीन की शनाख्त नहीं हो सकी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए 21 से 23 जनवरी डावोस का करेंगे दौरा। तेलंगाना में सरमाकारी और दीगर उमूर पर होगी अहम शख्सियात से बातचीत। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर मुकम्मल अमल आवरी और पसमानदा तबक़ात को मजालिस से मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ। तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-इत्माम 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर एहतजाज का कविता ने किया ऐलान। BRS पसमानदा तबक़ात के लिए रिजर्वेशन के नाम पर कर रही है ड्रामा। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने की कविता के एहतजाज के ऐलान पर तनकीदें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर की सख्त तनकीद। कहा झूठे वादों से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई से है परेशान। और गाज़ा में ज़ालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताज़ा हमले, कम से कम 18 फ़लस्तीनी हुए शहीद, मुतादिद दीगर ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।